ان کو بیٹھ کر کے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس وقت میں آپ محو عبادت ہیں، آپ کو عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام رونق اسٹیج ہیں، آپ کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اے اللہ کے نیک بندے تجھے عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے، لیکن ذرا جملہ معترضہ کے طور سے گفتگو کو اور بڑھاتا چلو، شاید کسی کو کڑوی لگ جائے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے، اس بڑے مجمع کے اندر یہ گفتگو کر کے ضرور جاؤں گا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے ان اللہ کے بندوں کے لیے جو غفلت میں مبتلا ہیں، اور خاص طور سے اپنے امام اور مدرس سے اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں، بڑے خسارے کے اندر ہیں، بڑے نقصان کے اندر ہیں۔ اس چادراہٹ کو ایک طرف رکھ دیجئے، علماء کے تعلق سے میں اپنے اندر نہ لائیے، ہاں ان علماء کے تعلق سے کسی چادراہٹ کا انتظار اور اظہار نہ کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم یہ ایسی غلطی ہوگی جس کی سزا تجھے اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے، آخرت کا کیا حال ہوگا، آخرت کے میدان میں کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن علماء کی مخالفت کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اسی دنیا کے اندر برباد کر دے۔ اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا ہے، اپنی آنکھوں سے میرے بڑے بڑے علماء کرام نے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے ذرا گفتگو کرتا چلو تو کہے گا کہ دنیا کی بات کرتا ہے، حالت حاضرہ کی بات کرتا ہے، نانا ذرا تجھے سمجھاتا چلو۔ میرے علماء یہاں موجود ہیں، حضرت سعد ابن وقاص ہیں، ذرا گفتگو کرنے چلا، ہو سکتا ہے آخری گفتگو ہو، ذرا سنتا چلا جا۔ اے اللہ کے نیک بندے حضرت سعد ابن وقاص ہیں، جانتے ہو کون ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا کے ماموں ہیں، جانتے ہو کون ہیں؟ ہاں وہی حضرت سعد ابن وقاص ہیں۔ جب غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، ہاں ذرا اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ پوری دنیا کے صحابہ میرے اور آپ کے آقا سے فرمایا کرتے تھے، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، لیکن حضرت سعد ابن وقاص اکیلے ایسے صحابی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی کو گھیر لیا گیا اور حضرت سعد اللہ کے نبی کی طرف سے تیر چلا رہے ہیں اور میرے آقا ان کو تیر پکڑا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہر تیر کے بدلے میرے اور آپ کے آقا فرماتے تھے، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں، کیونکہ حضرت سعد ڈیفنس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تیر پکڑاتے ہیں اور ہر تیر پر فرماتے ہیں، اے سعد ابن وقاص تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہ پہلے ایسے صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے یہ لفظ کہے ہیں۔ ہاں وہی حضرت سعد ابن وقاص کہ جب حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت آیا ہے، ایسے وقت میں جو ایران کے فاتح بن کر کے گئے ہیں وہی سعد ابن وقاص ہیں۔ میں تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں کے لیے گفتگو کرنے چلا۔ مختصر یہ کہ حضرت سعد ابن وقاص حضرت عمر کے زمانے میں کوفہ کے خلیفہ، ہاں کوفہ کے گورنر کے ساتھ ساتھ امامت کے عہدے پر بھی آ گئے، نماز پڑھانے کے عہدے پر بھی آ گئے۔ اے اللہ کے نیک بندے پھر ہونا کیا تھا؟ وہی ہماری بیماریاں، وہی ہماری کمیاں، امام صاحب پر نماز پڑھانی نہیں آتی، وہی ہماری کمیاں، امام صاحب سنت نہیں پڑھتے، وہی ہماری کمیاں، امام صاحب کسی کی بھی دعوت کھا لیتے ہیں، ہاں وہی ہماری کمیاں، امام صاحب سلام نہیں کرتے، وہی ہماری کمیاں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نیک بندے جیسے ہی حضرت سعد ابن وقاص کو کوفہ کی بنو عبس کی مسجد کا امام بنایا گیا، فوراً وہی تنقیدیں شروع ہو گئی جو آج میری اور آپ کی زبان پر رہتی ہیں۔ ایک مخالف نے پرچہ لکھ کر کے حضرت عمر ابن خطاب کو پہنچایا۔ رقعے کے اندر لکھا ہوا ہے، امیر المؤمنین جو آپ نے یہاں امام اور گورنر بنا کر کے بھیجے ہیں، نماز پڑھانی نہیں آتی، صحیح سے فیصلہ بھی کرنا نہیں آتا، کس کو امام بنا کر کے بھیج دیا؟ حضرت عمر ابن خطاب نے فوراً 2 صحابہ کو متعین کیا، جا کر کے کوفہ کی مسجد میں جا کر کے ہاں یہ اندازہ کرو اور جا کر کے وہاں کا معائنہ کرو، کیا وہاں کے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں؟
चुनाचे दो सहाबी गए हैं मस्जिदों के अंदर मालूम करते हुए, सब मस्जिदों वाले तारीफ कर रहे हैं, मैं बहुत मुख्तसर करने चला। आखिर में ये दोनों सहाबा जानते हो अल्लाह के नेक बंदे, हाँ बनु अबस की मस्जिद में पहुंचे जहां पर हजरत साद अपनी इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। नमाज के बाद फौरन दोनों सहाबा हजरत उमर के कासिद खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, हे अल्लाह के नेक बंदो, कौन हजरत साद को गलत पाता है, कौन राह रास्त से भटका हुआ पाता है। चनाचे सब कहने लगे, अल्लाह के नेक बंदे, हमने इनसे भला कोई ना देखा, हमने इनसे अच्छी नमाज पढ़ाने वाला कोई ना देखा, हमने इनसे अच्छे फैसले करने वाला, जिहाद की सफे बांधने वाला हमने कोई इस जमीन पर अपनी आंखों से नहीं देखा। लिहाजा सब तारीफ में लगे हुए हैं, लेकिन एक अल्लाह का बंदा जो पीछे पत्थर पर बैठा हुआ है, जिसको ज़ैद इब्न अरकम या और कोई गालिबन कोई और नाम है, लिहाजा वो खड़ा होकर के कहता है और खड़ा होकर के आवाज लगाता है, हाँ मैं कहता हूँ असाद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती, फैसले करने नहीं आते, ये हाथ मार करके कह रहा है। चुनांचे जैसे उसकी जबान से निकला, हजरत साद की आंखों में आंसू हैं, सारों कतार आंखों की आंसुओं की लड़ियां लग गई हैं कि कौन खड़ा हुआ जो कहता है कि नमाज पढ़ानी नहीं आती। मैंने तो नमाज अपने महबूब से सीखी है, नमाज मैंने खुद अल्लाह के नबी के बराबर में सीखी है, लेकिन ये कौन है कहता है मुझ पर नमाज नहीं आती। आज बहुत सारे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे इस जमीन पर हैं, मस्जिदों के अंदर एक दो ऐसे हैं, शायद उन्हें फजर पढ़े हुए कई कई हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन उनकी जबानों पर क्या है, इमाम साहिब पर नमाज पढ़ानी नहीं आती। कि जिन्होंने अलिफ से लेकर कलिमतानी हबीबतानी तक सिर्फ नमाज के फज़ाइल सीखे हो, नमाज के मसाइल सीखे हो, हाँ पाकी और नापाकी में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को गुजारा हो इन मसाइलों के अंदर रह करके, लेकिन जैसे ही अल्लाह का बंदा मस्जिद के अंदर आकर के नियत बांधता है, हाँ एक वो अल्लाह का बंदा कि जिसको इमाम साहिब ने कह दिया तकबीर जरा ठीक कर लीजिए, अजान जरा ठीक कर लीजिए, वो अल्लाह का बंदा खड़ा होकर के कहता है मैं अजान बाद में ठीक करूंगा, इमाम साहब पहले अपना बिस्तर लपेट लीजिए। आज मेरी और आपकी मस्जिदों का ये हाल है। ए अल्लाह के नेक बंदे, और बात आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन जरा गौर कर, तू गलती पर है। अपनी लड़ाई को इमाम साहब के सामने या इमाम साहब के बदले से उसको कबूल न किया कर। तेरी लड़ाई जिससे उसी से रखा कर, ये दिल को साफ कर लिया कर। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो आदमी इमाम साहब से मोहब्बत करता है, इसलिए मैं इमाम साहब से नफरत करता हूँ। वो आदमी इमाम साहब के पास बैठता है, इसलिए मैं इमाम साहब से नफरत करता हूँ। कभी कभी तेरी लड़ाई पर इमाम साहब कुर्बान हो जाते हैं। अल्लाह के नेक बंदे, कभी सोच लिया कर मैं कौन कौन सी गलतियों में मुब्तला हूं। खैर अल्लाह के नेक बंदे, जैसे ही वो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहने लगा मैं कहता हूं कि साद पर नमाज पढ़ानी नहीं आती, लिहाजा जैसे ही हजरत साद ने सुना फौरन आंखों से आंसू जारी हो गए, और आंसू जारी होने के बाद हजरत साद ने फौरन हाथ उठाए और हाथ उठा करके फरमाया, आज भी उलमा की ज़बानों पर वो पूरे के पूरे नगमे मौजूद हैं। हजरत साद हाथ उठा करके कहते हैं अल्लाहुम्मा इन काना अब्दुका हाज़ा काज़िबा क़मरिया वस्समा फातिल उमरहु वातिल फक़रहु वारिज़हु बिफ़ितन। क्या कह रहे हैं हजरत साद इब्न वक्कास, हे अल्लाह अगर ये अपनी चौधराहट में खड़ा हुआ है, अगर ये अपनी मैं में खड़ा हुआ है, हे अल्लाह फिर इसकी उम्र को लंबा कर दे, फिर इसके ऊपर फक्र को बढ़ा दे, फिर इसको फितनों में मुब्तला कर दे। ये कौन कह रहे हैं? हजरत साद इब्न वक्कास। ए अल्लाह अगर ये अपनी चौधराहट में खड़ा हुआ है तो फिर मेरे मौला क़मरिया वस्समा अतिल फक़रहु, हाँ अल्लाह इसके फकर को बढ़ा देना, फातिल उम्रहु इसकी उम्र को भी बढ़ा देना। मैं ये नहीं कहता ये भी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, ना ना, वारिज़हु बिल फितन, इसको बड़े बड़े फितनों
बयानों में मुब्तला करके दिखा दे। ये आंसू निकले हैं हजरत साद इब्न वक्कास के, मेरे अल्लाह ने उनको कबूल किया। लेकिन हजरत साद ने दूसरी पर्ची में हजरत उमर इब्न खत्ताब ने पर्ची में लिखा हुआ है, ए उमर अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ हो गया है, ए साद अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ है, तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो भलाई इसी में है, तुम उस मुसल्ले को छोड़कर फौरन मदीने आ जाओ। मुखालफत से कुछ होने वाला नहीं है, ये और आगे बढ़ेंगे और लोगों को बहकाएगा। इसलिए बेहतर और अफजल यही है तुम मुसल्ले को छोड़कर फौरन मदीने आ जाओ। हजरत साद तो आ गए, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो मुखालिफ इंसान बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी भौएं लटक गई, बिल्कुल सफेद हो गया, भौएं सफेद होकर के लटक गई। हाँ, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकर के अंदर उसको ऐसा मुब्तला किया कि कटोरा लेकर चौपलों पर खड़ा होता था, चौपलों पर खड़ा होकर के भीख मांगता था। कोई औरत अगर उसके आगे से गुजर जाए तो उसके साथ छेड़खानी करता था। कोई आकर के कहे, ओ अल्लाह के बंदे तुझे क्या हो गया, तेरी उम्र इतनी हो गई, भौएं तेरी लटक गई, तू क्यों इन औरतों को छेड़ता है, भीख नहीं मांगता है और औरतों के साथ बदतमीजी करता है। हाँ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते और कहता, ओ अल्लाह के बंदो मुझे कुछ न कहो, ये मेरे इमाम हजरत साद की बद्दुआ का नतीजा है। कहीं आज मैं और आप तो इसका शिकार नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अल्लाह से तौबा करें, अगर हो रहे हैं तो अपने इमाम मोहतरम, अपने मदरसों के मुदर्रिस, अपने मोहतमीम मुंतजिमीन, अल्लाह की कसम इनसे आकर के माफी मांगो। ये तुम्हें सुबह के वक्त में मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, तुम इन्हें रात के अंधेरों में गालियां देना, तुम इन्हें दिनों की तन्हाइयों में सबके सामने गालियां देना, ये कभी तेरे सामने इजहार नहीं करेंगे तूने मुझे रात के अंधेरे में गाली दी है। ये तुझसे मुस्कुराएंगे, तुझसे मुसाफा करेंगे, हाँ तुझसे मुआनका करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने महबूब से यही सीखा है, क्योंकि इन्होंने अपने महबूब से यही सीखा है कि गालियां देने वालों को दुआएं दी जाए, पत्थर बरसाने वालों के लिए हाँ भलाइयां की जाए, जो मुखालिफ साजिशें करे उसके लिए रहमत की और ईमान की दुआएं और हिदायत की दुआएं दी जाए। उन्हीं की नस्लों से चलते हुए अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये तुझे कभी बुरा नहीं कहेंगे, ये तुझे पलट करके जवाब नहीं देंगे। इसीलिए ओ अल्लाह के नेक बंदे, ये गुफ्तगू में करने चला, मैंने बड़ा मजमा देखा, क्योंकि मेरी आज कौम इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। जरा किसी को बुरी लगी हो तो माफी नहीं बल्कि अपनी गलती को ठीक करे, माफी नहीं अपने अंदर से इस कमी को निकाले। ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं तुझसे तेरी भलाई की गुफ्तगू करने लगा। जानता है कभी कभी तू कारोबार की तरफ से परेशान होता है, किसी ने नहीं कराया, जरा गौर कर, तो अपने इमाम का तो मुखालिफ नहीं है। अल्लाह की कसम, कभी कभी तेरी औलाद तेरी बेइज्जती करती है, तू समझते है औलाद पर किसी ने कुछ कराया है। ना गौर कर कि कहीं तो अपने इमाम का तो मुखालिफ नहीं है, लोग तेरी कदर नहीं करते, तू समझता है मेरी इज्जत खत्म हो गई। ना अल्लाह के नेक बंदे, अपने दिल में गौर कर, कहीं तो अपने इमाम का मुखालिफ तो नहीं है, कहीं तो अपने मुदर्रिस का, अपने उस्ताद का मुखालिफ तो नहीं है, और उसकी सजा अल्लाह तुझे दुनिया के लोगों से दिलवा रहा हो। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदे, बड़ी खुशी हुई आपके इस मदरसे में देखकर। अल्लाह 33 हुफ़ाज़े किराम दिए हैं, अल्लाह ये बड़ी तादाद तूने दी है, अल्लाह इस कस्बे की पूरे की अल्लाह मग़फ़िरत का जरिया बना दीजिए। ए अल्लाह के नेक बंदे, बड़ा दिल खुश हुआ आपके इस इदारे में आकर।